नमस्कार, मैं रुक्मणी और स्वागत है आपका खबर आसनसोल में, स्पॉन्सर्ड बाय। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI रहमतनगर। मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज़ाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है। कंप्लीट हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ Welcome to Payal Multi Plaza, a one एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। आइए सीधे करेंगे खबरों की शुरुआत। आसनसोल के एक बेसरकारी अस्पताल पर लगा एक बार फिर इलाज में लापरवाही का आरोप। यह आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने अस्पताल परिसर में किया जमकर विरोध प्रदर्शन। वीरभूम जिला के प्रदीप बावरी ने बताया कि उनके 19 वर्षीय बेटे देवाशीष बावरी को कल अस्पताल में सर में दर्द और बुखार के कारण भर्ती कराया गया था। कल दोपहर में उसे भर्ती कराया गया एवं रात में उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन एवं बावरी समाज द्वारा आज सुबह से हंगामा करते हुए अस्पताल में इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया गया। घटना की खबर सुनते ही मौके पे भारी संख्या में पुलिस बल उपस्थित हुई और मामले को शांत कराने की कोशिश में जुट गई। समस्त बावरी सब মানুষ কে ডাকুন এখানে হাইওয়ে রোড জাম করব রাস্তা কোন দেখি আমার সাথে কথা বলুন ম্যানেজমেন্ট কে আছে ম্যানেজমেন্ট ডাকুন ম্যানেজমেন্ট কে আছে ডাকুন আধিকারিক যারা আছে কি হবে কি হয়েছিল প্রথমে ভর্তি করালো ভর্তি করার পর তারপরে সমস্ত কিছু লিখলে যে এই রিপোর্ট করতে হবে এই রিপোর্ট করতে হবে এই ওষুধগুলো নিয়ে এসো এই ওষুধ নিয়ে এসো। হ্যাঁ, তারপর সমস্ত কিছু এনেছি রিপোর্টগুলো সব কিছু হনাই তারপর আমরা আজকে দেখি যে রিপোর্টগুলো চেক করলাম যে চেক করার পর সব রিপোর্ট নাই সব রিপোর্ট পর দেখলাম ফাইলের মধ্যে নাই কিছু নাই কোনো দেখাতে পারছে না দেখাতে না পারার জন্য আমরা একটা ফাইলটা আমরা নিজেরা নিলি তারপর ওরা পুলিশ ফোন করার পর তারপর পুলিশ চলে আসে তারপরে আমাদের ছেলেদের কাছে ফাইলটা ছিল ফাইলটা পুলিশ কেটে নেবার পর তারপরে ওখানে জমা দেওয়ার পর ওরা কী করলে ফাইলটা নিয়ে চলে গেলো তারপরে চেঞ্জ করে তারপরে ওরা কম্পিউটারে কী করলে না করলে হ্যাঁ তা আমাদের কোনো কালকে আমরা 9:30 ভর্তি করেছিলাম আমাদের লিখেছে 9:30 ভর্তি লিখেছে আমাদের 3টের সময় লিখেছে। কী হয়েছিল মাথাটা ব্যথা করছিল আর হালকা ধরনের জ্বর ছিল আর কিছু না। কি নাম? দেবাশিস বাউরি। কত বছর বয়স? 18 বছর বয়স। 19-এ ঢুকলো 18 বছর 19। কি বলছে হসপিটাল পক্ষ? হ্যাঁ হসপিটাল পক্ষ পুরোপুরি অস্বীকার করছে যে আমাদের হ্যাঁ ওরা অস্বীকার করছে আমরা সব করেছি তা আমরা ফাইলটা যদি না দিই তাহলে তো আমরা সব কিছু আমরা পেয়ে যাই। ফাইলটা এসে পুলিশে এসে কেটে নিল। আপনার কে বটে? আমার ছেলে। এখন কি হয়েছে? ছেলে আমার মারা গেছে। কখন মারা গেল? মারা গেছে রাত 12টার সময়। তো কি ডাক্তার গাফিলতি বলছেন? হ্যাঁ গাফিলতি গোটাটাই গাফিলতি। হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট আমরা কোনো অল্প করিনি যা চেয়েছে তাই দিনছি। হ্যাঁ যত টাকার ওষুধ আমরা যত টাকার যা লিখেছে তাই আমরা পৌঁছাচ্ছি। হ্যাঁ অল্প কোনো করি নাই সেভাবে চিকিৎসা অনেক ওখানে ওষুধ সব ইঞ্জেকশন রেখেই দিচ্ছে। তারপরে যখন আমরা লাশ হয়ে আসছে হ্যাঁ তখন ইঞ্জেকশন ফুটছে করছে। হ্যাঁ কখন ভর্তি করেছিলেন? ভর্তি কাল 9:30 ওরা কম্পিউটারে লিখেছে। হ্যাঁ দিনে কোথা থেকে আপনারা এসেছেন? বাড়ি কোথায়? আমাদের বাড়ি হচ্ছে পারসুন্ডি, বীরভূম, কাঁকড়তলা থানা। আপনার নাম? আমার নাম প্রদীপ বাউরি। আমাদের একটা ভাই মারা গেছে 19 বছর। কখন মারা গেল? মারা গেছে রাত্রে 12টা নাগাদ। কী হয়েছিল? এমন কোনো কিছু হয় না। আমরা যখন অ্যাডমিশন করেছি নর্মালি ছিল তখন ওদের জ্বর ছিল, হালকা মাথা ব্যথা ছিল, এই কারণে ভর্তি হয়েছিল। পুরোপুরি হাসপাতালে গাফিলতির কারণে আমাদের ছেলেটাকে হারিয়ে ফেললাম। মারা গেছে কখন? রাত্রে 12টার সময়। কোথা থেকে আসছেন আপনি? বীরভূম পারসুন্ডি। তো কি ডাক্তারের গাফিলতি বলছেন? হ্যাঁ পুরোপুরি ডাক্তার এবং হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট পুরোপুরি হাসপাতালে গাফিলতি এবং ডাক্তারের গাফিলতি। এখন কী চাইছেন আপনারা? এখনও চাইছি যে আমাদের ধরো এই যে একটা ছেলেকে হারিয়ে ফেলাম পরবর্তীকালে এরকম ভুলবশত কোনো কিছু না হয়। আর পরপর এই হাসপাতালে এরকম ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, বারবার এরকম ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এই হাসপাতালে নোংরা ব্যবহার এবং নোংরা রাজনীতি সবসময় পয়সায় মেন। আমরা কালকে 11টার সময় যখন ভর্তি করলাম ওরা পুরোপুরি সমস্ত কিছু অস্বীকার করছে। পরে আমার যখন ওখানে কম্পিউটার টাইম দেখাচ্ছে বিকেল 3টের সময়
অ্যাডমিশন করার পর যাবতীয় মেডিসিন লেখানো হয়, সমস্ত কিছু মেডিসিন টাইম মতো এনে দেওয়া হয়, সমস্ত কিছু মেডিসিন দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এখানে গার্জেন ছিল আমাদের, এখানে আমার বাবা ছিল, দাদা ছিল, ওরা যখন বারবার ওষুধ লিখে দেওয়া যায়, হ্যাঁ, যখন ওরা তাও জিজ্ঞেস করে, পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করে, যেমন ওখানে যারা দেখছেন পেশেন্টকে সবাইকে জিজ্ঞেস করেন যে আমার পেশেন্ট কেমন আছে, বলছে মোটামুটি ঠিকই আছে। ওনারা চেয়েছিলেন যে যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় আপনারা যদি মনে করে রেফার করতে পারেন, ওরা কিন্তু কোনো কারণে রেফার করেনি এবং ভুলবশত কাগজে সাইন করে নিয়েছে। ওরা পেশেন্ট অনেক কিছু জানে না, কোথায় সাইন করতে হবে, কী করতে হবে না করতে হবে, এবং পেপারে লেখা আছে মাথায় ঠিক নেই। এখানে এগ্রিমেন্টে আবার লেখা হয়েছে যে হ্যাঁ আমি নিজের ইচ্ছাতে সাইন করছি, এবং যাকে সাইন করছে সে জানে না এখানে কী লেখা আছে না আছে। পরবর্তীকালে যখন সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর যখন পেশেন্ট মারা যায় তখন এখানে ইনফর্ম দেওয়া হয়নি ওইখানে। তারপর যখন ডেকে দেওয়া হয়, যখন ঘরের লোক বারবার যায় তখন বের করে দেওয়া হয়। তারপর বলে যে পরবর্তীকালে যখন রাত্রে 12টার সময় বলে যে পেশেন্ট মারা যায় তখন উপরে যাওয়া হয়, তখন বলে যে পেশেন্ট মারা যায়। আমরা জানতে পারলে আমরা নিচে আছি, আমরা গার্জেন আমাদেরকে ডাকা উচিত, এই ওষুধ দিচ্ছি ওই ওষুধ দিচ্ছি, পরে আবার আমাদেরকে বিল ধরে যাচ্ছে, ভুলবশত বিল এই ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি ওই। আমার একটা পেশেন্ট যে মারা গেল ওদের কাছে এটার কোনো মূল্য নেই। কী নাম যে মারা গেছে? ওনার বিকাশ দেবাশিস বাবু, ভালো। কত বছর বয়স? 19 বছর, 18+। আপনার নাম? আমার নাম আদিত্য বাবু। पश्चिम बर्धमान यूथ कांग्रेस कमेटी की ओर से वाइस प्रेसिडेंट रवि यादव के नेतृत्व में आज थाना डीएम सीएमएस बराकर हेल्थ सेंटर पर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। रवि यादव ने कहा कि बारिश की शुरुआत होते ही पश्चिम बंगाल सरकार की पोल खुल गई है। परसों हुई बारिश के बाद कुल्टी क्षेत्र के कई जगहों पर बिजली कटी रही। कुल्टी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर व रानी बंगला हॉस्पिटल में बिजली न रहने पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनरेटर होने के बावजूद फ्यूल की व्यवस्था नहीं है। बिजली न रहने पर सभी भर्ती मरीजों को घर जाने को बोल दिया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों को लगने वाली वैक्सीन को कम तापमान पर रखा जाता है, लेकिन उनकी जानकारी के हिसाब से वह वैक्सीन अस्पताल में ही रखी हुई थी और आज से उन लोगों द्वारा वैक्सीन की प्रक्रिया वापस से शुरू कर दी गई है। अगर रखी वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है तो आगे आने वाले समय में बच्चों को होने वाली परेशानियों का जिम्मेदार थाना और अस्पताल के डॉक्टर्स होंगे। हम लोगों ने अभी यहाँ के ऑफिसर्स को एक कंप्लेन दिया है, लिखित में एक शिकायत दर्ज कराई है। आप लोग को पता है जिस तरीके से अभी बारिश का शुरुआत हुआ है, बारिश का शुरुआत होते ही पश्चिम बंगाल की जो सरकार है ना उनकी पोल खुल गई है। चारों तरफ अंधेरा, चारों तरफ हाहाकार। पीएचई में लाइन का सप्लाई नहीं है, पुलिस स्टेशन में लाइन नहीं है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो हमारे यहाँ का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है रानी बंगला जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, वो हेल्थ सेंटर में परसों से लाइन नहीं है। कल रात में शायद लाइन आई है। वहाँ पे इन्वर्टर का सुविधा होगा, वहाँ पे जनरेटर तक का सुविधा दिया गया है गवर्नमेंट से, लेकिन वहाँ पे तेल नहीं है। इस चलते में वहाँ के जितने भी पेशेंट हैं उस सभी पेशेंट को मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सभी को हटा दिया गया, सभी को भगा दिया गया कि लाइन नहीं है, आप लोग सब अपने अपने घर चले जाओ। इस तरीके का जो दुर्व्यवहार सामने आया है और उससे भी ज्यादा चिंता का जो विषय है जिसको लेकर मैं अभी पुलिस स्टेशन में आया हूँ और जिनको लेकर अभी मैं कंप्लेन दर्ज कराया हूँ कि वहाँ पे मेरे हिसाब से मेरे जो जानकारी में है कि वहाँ पर उल्टी के तमाम बच्चों का जो माँ और बच्चों का जो वैक्सीनेशन होता है उसके जो वैक्सीन है वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। और मेरे पास जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि अभी भी वहाँ पर जो खराब वैक्सीन है, क्योंकि वो वैक्सीन को 0 से लेके 8 डिग्री टेम्परेचर तक को मेंटेन करना होता है। जब आपके पास लाइन नहीं, आपने जनरेटर को चालू किया नहीं, उसके बाद भी वो वैक्सीन उसी हॉस्पिटल में था या नहीं था, ये पुलिस को मैंने इंक्वायरी करने के लिए बोला है। और अगर था और वही वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ है, वही दवा को अगर वैक्सीनेट किया जा रहा है, अगर इसके बाद कोई भी तरीके का बच्चे के साथ यहाँ के पुल्टी के तमाम बच्चों के साथ अगर जिंदगी से खेला गया और अगर उनको कोई भी तरह का कोई परिणाम, उनको दुष्परिणाम अगर सामने वाले दिनों में आता है तो इसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थाना का होगा। उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाकर के पब्लिक हेल्थ सेंटर के तमाम डॉक्टर्स का होगा, क्योंकि ये जो बड़ी चीजें हैं अभी उनको आज वैक्सीनेट नहीं करना था, उन दवाओं का उनको जांच करना था वो वैक्सीन सही है या नहीं है, लेकिन आज से ही उन्होंने वैक्सीन चालू कर दिया। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, हॉस्पिटल में जनरेटर होते हुए, आप सोच के देखिए जनरेटर होते हुए, कल कुछ घंटे पहले जब मैं वीडियो लाइव चला रहा था उस समय से पहले ही हमारे वहाँ पे एक डायरिया का पेशेंट आता है, वो डायरिया का पेशेंट को वहाँ से भगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में लाइन नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं, जो गरीब का चीज है, जिसपे गरीब का अधिकार है,
उसे नजरअंदाज किया जाता है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, वो सब आज आंख और कान मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे पुलिस स्टेशन को और पुलिस ने एक शिकायत दर्ज कराई है, उन तमाम चीजों की जांच हो। और क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है, क्योंकि ये यहाँ के आने वाले भविष्य, यहाँ के बच्चों और यहाँ की जो माएँ हैं उनकी सुरक्षा का विषय है। इसलिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया है यहाँ पे, और इनकी जांच का विषय हम लोगों ने इनको जांच करने को कहा है। और अभी हम लोग फिर से यहाँ डीएम ऑफिस में भी जा रहे हैं, हम लोग हेल्थ सेंटर में भी जा रहे हैं इसका कंप्लेन करने के लिए, और क्या सिचुएशन है इसे हम लोग अभी देखेंगे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप भी चाहते हो ट्रेडिंग सीखने? क्या आप भी अपना फ्यूचर ट्रेडिंग में देखते हैं, बट आपको अच्छी मेंटरशिप नहीं मिल रही है? सो डोंट वरी, बिकॉज सायना ट्रेडिंग एकेडमी प्रोवाइड यू दिस थिंग्स। हेलो दोस्तों, आई एम फ्रॉम सायना ट्रेडिंग एकेडमी। आवर एकेडमी गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटी देन एनी अदर ट्रेडिंग एकेडमी। We will get a good mentorship, advanced coaching and lifetime support from Saina Trading Academy. Our academy is trusted by 1 lakh plus people. So what are you waiting for? Hurry up. So book your seat by calling this number. मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। बचपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCPT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन। मॉडर्न इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस। सेल स्कोर ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups. At Payal Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Payal Multi Plaza near Asansol Railway Station. अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल।
सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। गाछ तो उतना खास है नहीं, बड़ा गाछ सब काट दिया जा रहा है। लेकिन आसनसोल को देखिए छोटा गाछ ज्यादा बिक्री के कारण से जो आपका फ्लैट ज्यादा है और सब आदमी अभी शौकीन है, गाछ का शौकीन ऐसा नहीं है जो सब शौकीन है। हाँ, तब छोटा छोटा गाछ बगान आ रहा और बगान में छात बगान कर रहा है छोटा छोटा गाछ से। और बड़ा गाछ लगाने के लिए देखिए जगह भी चाहिए, वही सबसे जगह भी नहीं है कि, लेकिन सरकार चाहेगा तो रोड के ऊपर बहुत गाछ लगा सकता है या साइड में, दोनों रोड के ऊपर दोनों साइड में जगह है, दोनों रोड का साइड में गाछ लगा सकता है, बीच से भी लगा सकते हैं गाछ। हाँ, और ऐसे भी देखिए बड़ा गाछ का उतना बिक्री नहीं हो रहा है, कारण जगह भी कम हो गया है और बिक्री छोटा गाछ के ज्यादा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का नहीं, ऑक्सीजन तो देखिए ऑक्सीजन तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है गाछ काट देने का वजह से। हाँ, तो ऑक्सीजन भी इस कारण से कम हो जा रहा है। आज देखिए सब जगह बारिश हो रहा है, हम लोग यहाँ बारिश हो रहा नहीं आसनसोल में, इस कारण से जो बड़ा गाछ आस्ते आस्ते काट दिया जा रहा है, फ्लैट ज्यादा हो रहा है और जमीन ज्यादा बिक्री हो रहा है, तो इस कारण से गाछ भी बहुत कम हो गया है। इसलिए आसनसोल में एकदम गाछ मतलब ऑक्सीजन भी लेवल कम हो गया है, बारिश भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कितना भी बड़े बड़े प्लांट है या ऐसी भी जो कोई जगह जगह खाली है, देखा जाता है बड़े बड़े गाछ तो लगाने में तो कई वर्ष लग जाते हैं, काटने में 1 मिनट लगता है। नहीं, ठीक है, आपको कितना चोट लगता है? बहुत ही लगता है खराब। देखिए हम लोग जो अभी जितना गर्म हो रहा है आसनसोल में, मतलब गर्मी पड़ गया है, उस कारण एकमात्र गाछ है। जो गाछ अगर रह जाता है इस पूरा आसनसोल में तो इतना गर्म नहीं होता, इतना पॉल्यूशन भी नहीं होता, इतना धूल भी नहीं होता। देखिए हम लोग लॉकडाउन भी क्रॉस करके आए हैं, लॉकडाउन में जितना पूरा शांत हो गया था तो उस टाइम को पूरा वेदर भी चेंज हो गया था। उस साल इतना भी बारिश हुआ जो हम लोग को सहने पर पूरा आसनसोल डूब गया है। मतलब हम लोग को गाछ चाहिए, पूरा आसनसोल में अगर गाछ होगा तो बारिश भी सही रहेगा और सब सुस्त रहेंगे हम लोग, और पूरा ग्रीनिश रहेगा तो बहुत अच्छा भी लगेगा। पूरा हम लोग चाहते हैं पूरा आसनसोल में सरकार को बोलेंगे या हम लोग पब्लिक को बोलेंगे चारों तरफ गाछ लगाइए, घर में होगा छोटा छोटा गाछ लगाइए, या आपका जगह है तो बड़ा गाछ भी लगाइए। हम कोशिश करेंगे जितना कम समय में हम अपना दुकान से दे सकेंगे तो हम आप लोग को सहायता करेंगे। कि सरकारी तौर पर जितना भी भवन है, नेता मंत्री कोई भी है, वो लोग गाछ दे देते हैं, लेकिन ये परवाह नहीं करते कि लगाने वाला लगाया। हाँ, वो तो देखिए जो जिसको दिया है उसको भी अपना इच्छा होना चाहिए, जो गाछ तो हम कहीं जाके लगाए। सरकार हर साल गाछ बांटता है, ऐसा नहीं है गाछ नहीं बांटता, पंचायत तरफ से गाछ बांटा जाता है, लेकिन हमको अगर बांटा है तो हम गाछ लगा रहे कि नहीं, हमको इच्छा है तो वो तो सब समझ में, मतलब सरकार को तो समझ में नहीं आ रहा गाछ तो लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। हाँ, उसको जिसको दे रहा है उसको खुद इच्छा होना चाहिए गाछ लगाने के ऊपर, मतलब एक तो इच्छा भी होना चाहिए गाछ लगाने, गाछ को प्रेम करना चाहिए। बिक्री कैसा है? मोटा मोटी बिक्री है, छोटा गाछ का बिक्री ज्यादा है, बड़ा गाछ का बहुत कम है। हाँ, आसनसोल में हीट भी बहुत ज्यादा हो गया, इस कारण से बारिश भी नहीं हो रहा तो आदमी पीछे भी चल गया। जो बारिश हो तब गाछ लगाए, तो नहीं लगाएंगे। क्या कारण है ये छोटा गाछ बिक्री हो रहा है? छोटा गाछ बिक्री हो रहा है, आदमी तो देखिए शौकीन तो बहुत है, ऐसा नहीं है जो फ्लैट हो गया मतलब शौकीन नहीं है, शौकीन तो काफी है, लेकिन शौकीन है बोल के आदमी सब गाछ में, घर में गाछ लगा रहा है। अभी बेडरूम से लेके किचन रूम तक भी गाछ लगा रहा है, यानी बाथरूम तक भी गाछ लगा रहा है, छोटा छोटा मनी प्लांट से लेके सब कुछ लगा रहा है, लेकिन जगह तो कम है, इसलिए छोटा छोटा गाछ के ऊपर फेवर कर रहा है सब। ऐसा भी तो देखा जा रहा है कि लोग डर की वजह से ऑक्सीजन गाछ ही घर में लगा ले। हाँ, तो क्या करेगा, बड़ा गाछ तो है नहीं तो आदमी छोटा गाछ से काम चला रहा है। जब बड़ा चीज खराब हो जाता है तो छोटा चीज से आदमी काम चलाता है, क्या करेगा। लेकिन शौकीन है आसनसोल, काफी शौकीन है आसनसोल, दुर्गापुर काफी शौकीन एरिया है, लेकिन क्या करेगा आदमी, तो गाछ तो लगाना ही पड़ेगा, इसलिए छोटा छोटा गाछ लगाता है, बड़ा गाछ तो नहीं लगाता है। आसनसोल नगर निगम गाछ लगाने का कल्पित लिया है कि जीपी रोड में गाछ लगाया जाए, आपके अनुसार क्या गाछ लगाना चाहिए? हम मेरा अनुसार में देखिए जो डिवाइडर बना रहा, मेरा ख्याल से बोलता है जो डिवाइडर बना रहा पूरा आसनसोल के ऊपर, वो डिवाइडर को अगर प्लांट से डिवाइडर करेगा तो बहुत अच्छा होगा। मतलब दोनों साइड अगर छोटा सा बीच से जो डिवाइडर प्लास्टिक से कर रहा, वो प्लास्टिक से नहीं करके उसको अगर सीमेंट से पूरा पिलर मतलब दोनों साइड नली जैसा बना के बीच में मिट्टी भर के अगर गाछ लगाया, जैसे हाईवे में है
वैसा हिसाब से अगर गाछ लगाएगा तो देवदारू गाछ कम खर्चा में, देवदारू गाछ या कम डाली पाला भी ज्यादा नहीं होता उसमें, हाँ, तो पत्ता भी बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से हम बोलेंगे जो देवदारू गाछ से पूरा आसनसोल को सजाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। संजीव पाल। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।